Hello everyone and welcome to this next video on Fantastic 5. I hope by now you know what is this Fantastic 5 is all about. In this video, we discuss past year question paper, be it from the subjects like quants, verbal, logical reasoning or data interpretation. So if I talk about verbal ability and reading comprehension, in the past few videos, I have discussed CAT past year questions. I have discussed some questions on para-jumbles, odd sentence para-jumbles, para-summary and reading comprehension as well. Now from this particular video, I went further and segregated those passages specifically on the basis of the genres from which they have taken. So today in this particular video, I have taken passage specifically from the genre which is philosophy. Right? And again, this passage is also taken from past year CAT paper. So we'll solve the passage first and then we'll solve the question related to the same. Now, the passage is there on your screen. I am giving you, or you can pause this video for a while. Take 7 minutes. Yes, you should not take more than that. Take 7 minutes to just go through the passage, read the passage carefully. I'll explain the passage after that and we'll solve the questions together. Right? And your time starts now. Okay, I'm sure you must have read the passage by now and there will be mixed feelings. Passage difficult hai, easy hai, moderate hai. Let's make this passage first of all comprehensible because aapko comprehension samajh mein aana zaruri hai. And sometimes when I talk about vocab is important, right? And I get very weird reaction that why so many classes on vocabulary. In CAT, they don't ask any questions related to vocabulary. Now, if someone who don't know the meaning of prophecy, the comprehension becomes very, very difficult. I hope you must have realized it by now when you have solved the passage, and there will be many students who must have, lost the battle. I would say they must have surrendered in front of this passage somewhere in between, and that's what basically hota hai hamare CAT एग्जाम्स के अंदर भी या कैट एग्जाम के अंदर भी राइट लेट्स डिस्कस व्हाट दिस पैसेज ऑल अबाउट अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन प्रोफेसी सो प्रोफेसी इज समथिंग व्हेन यू आर प्रेडिक्टिंग द फ्यूचर व्हेन यू आर प्रेडिक्टिंग सर्टेन इवेंट्स ऑफ द फ्यूचर दैट इज व्हाट द वर्ड दैट इज बेसिकली द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रोफेसी इज ऑल अबाउट सो बोल रहा है जब आप प्रोफेसी को एक्सप्लेन करते हैं राइट व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग टू एक्सप्लेन द प्रोफेसी इट मस्ट मेक सम सपोजिशन अबाउट द फ्यूचर जब आप कोई भी अनप्रिडिक्टेबल इवेंट को प्रिडिक्ट करते हैं आप कुछ सपोजिशंस लेते हैं दैट ऐसा होगा देयर आर सर्टेन प्रेडिक्शंस व्हिच यू डू राइट देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स यू आर अनप्रिडिक्टिंग सर्टेन थिंग्स विद द पॉसिबिलिटी कि ऐसे हो सकता है राइट द मोस्ट फंडामेंटल सपोजिशन और एक सबसे बेसिक सपोजिशन जो आप आगे के अनप्रिडिक्टेबल चेंजेस को लेकर करते हैं कि ये जो चीजें हैं ये अभी तक प्रेजेंट नहीं है ये जो चीजें हैं अभी तक प्रेजेंट नहीं है एंड देयरफॉर कैन नॉट प्रोड्यूस इफेक्ट इन द प्रेजेंट क्योंकि ये चीजें अनप्रिडिक्टेबल है फ्यूचर के अंदर होने वाली हैं अभी ये प्रेजेंट के अंदर नहीं है और इसीलिए इसका इफेक्ट प्रेजेंट के अंदर नहीं दिख सकता दैट इज द फंडामेंटल द बेसिक सपोजिशन द बेसिक पॉसिबिलिटी विच यू कंसिडर अब वो बोल रहा है अगर आप इस एक्सप्लेनेशन को कंसिडर करते हैं when you are considering this particular explanation वो बोल रहा है अब यहां से काफी आइडियाज जनरेट होते हैं what are those ideas so this is wherein the premise will come into picture right तो क्या बोल रहा है the path of explanation that stem from this view leads necessarily to the various idea of the future as a potential that somehow exists in the present so the first thing which they are talking about is आप जब बात करते हैं कि ऐसा फ्यूचर में हो सकता है बेस्ड ऑन द सपोजिशन दैट ये प्रेजेंट में नहीं है वो बोल रहा है पहली चीज अगर आप ऐसा बोल रहे हैं तो पहली फिलॉसफी ये बोलती है कि कुछ ना कुछ प्रेजेंट में एग्जिस्ट करता है उसके बेस में आप प्रेडिक्ट करते हो दैट इज पॉइंट नंबर 1 अब इसके बेस पे इस चीज के बेस पे पूरा स्ट्रक्चर पैसेज का आएगा लेट्स सी व्हाट वो बोल रहा है एक एनालॉजी लेते हैं एक कंपैरिजन लेते हैं किसका एक सीड का एंड फ्लावर का राइट वो बोल रहा है गार्डनर जो है A gardener can examine a seed. वो एक सीड को एग्जामाइन करके will be able to predict कि वो कैसे फ्लावर में बदलेगा. So what is it? There is certain things, certain premise which is there in the present and on the basis of which you are predicting the future. So you can't say कि उसका इफेक्ट प्रेजेंट के अंदर नहीं दिखता है. उसका एक बड़ा ही लेमन एनालॉजी उन्होंने सीड और फ्लावर के बेसिस पे दिया है. सब premonitions
मे इंडीड स्टेम्स फ्रॉम क्लूज। वो बोल रहा है सम प्रीमोनिशंस, अगेन प्रीमोनिशंस मतलब द इवेंट्स विच विल हैपन इन विच मे हैपन इन फ्यूचर, ठीक है, सम जिसको आप पहले से प्रिडिक्ट कर रहे हो। सम प्रीमोनिशंस मे, हर जगह वर्ड मे का यूज किया हुआ है। सम प्रीमोनिशंस may indeed stems from the clues scarcely noticed in the conscious way। वो बोल रहा है कई प्रिडिक्शन जो है वो जो है कई क्लूज से आएंगे जो कि स्कैर्सली, बहुत ही छोटे छोटे, बहुत ही कम जगहों पे, बहुत ही कम मात्रा के अंदर वो क्लूज मिलेंगे जो कि कॉन्शियस वे में आपको पता लगेगा, जिस वे पे आप प्रीमोनिशंस कर सकते हो। दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, बट वो बहुत स्कैर्सली पॉसिबल है, ठीक है। अब अगेन वो उसका एग्जाम्पल दे रहा है कि अगर कार के अंदर एक अनफेमिलियर नॉइज आ रही है, इसका मतलब इट विल गिव राइज टू अ एक्यूरेट प्रीमोनिशन ऑफ अ डेंजर। आप प्रिडिक्शन कर रहे हो, एक्यूरेट प्रिडिक्शन कर रहे हो किसकी? डेंजर की। बट वो बोल रहा है इस थ्योरी के अंदर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? द वीकनेस ऑफ दिस थ्योरी इज दैट कि भैया इसके अंदर जो रिकॉग्नाइजर है उसकी एक अनकैनी एबिलिटी, मतलब वो एबिलिटी जो उसके अंदर है, वो एबिलिटी जो उसके अंदर बेस्टोर्ड है, वो एबिलिटी विच इज वेरी अनकॉमन, हर बंदा नहीं दे सकता, तो उस बंदे की एबिलिटी के ऊपर होगा टू साइन एन इंडिकेशन दैट नॉट ओनली imperceptible to the ordinary eye but also impossible to deduce theoretically। वो बोल रहा है ये चीज जो है ये सिर्फ उस बंदे की एबिलिटी पर डिपेंड करता है, बट एक नॉर्मल आई को imperceptible होगा, वो नहीं देख पाएगा, और दूसरा वो थ्योरी के फॉर्म पे आप लॉजिकली डिड्यूस नहीं कर सकते। आगे चलते हैं। अब वो बोल रहा है यहां तक तो प्रॉब्लम है थ्योरी की। अब वो बोल रहा है मुझे ये चीज समझाओ, जब एक ड्रीमर एनवायरनमेंट, जो बंदा ड्रीम में देखता है कई बार, वो एक्यूरेट प्रीकॉग्निशन कर देता है, वो ड्रीम में एक एक्यूरेट प्री रिकॉग्निशन करता है, वो डिजास्टर जो 6 महीने बाद होने वाली है या 3000 माइल्स अवे होने वाली है, राइट। अब वो बोल रहा है कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सजेशंस आए इसको एक्सप्लेन करने के लिए, राइट। अब वो क्या क्या सजेशंस हैं उस पर हम बात कर रहे हैं। पहला सजेशन जो यहां दिया गया है, मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूं, हाईलाइट कर देता हूं आप लोगों के बेनिफिट के लिए। सो पहला सजेशन जो दिया हुआ है दैट ये सारे इवेंट्स एक टाइमलेस मेंटल पैटर्न बनाते हैं जिसके अंदर लिविंग एंड नॉन लिविंग पार्टिकल यूनिवर्स में एसोसिएट होते हैं। सो दिस इज व्हाट वाज गिवन टू एक्सप्लेन कि ये जो आप चीजें बोलते हो कि हम सपनों में जो चीज कैसे सही हो जाती है, उसका रीजन कुछ इस प्रकार है, ठीक है। अब वो बोल रहा है ये जो आइडिया है ये कुछ एंशिएंट बिलीफ से रिलेटेड है, और एंशिएंट बिलीफ की बात जो की गई है दैट इज मैक्रोकॉज्म। मैक्रोकॉज्म का मतलब होता है यूनिवर्स। वो बोल रहा है दिस इज समथिंग विच इज कमिंग फ्रॉम द एंशिएंट बिलीफ मैक्रोकॉज्म। और वो क्या बोल रहा है कि ये जो यूनिवर्स है इसके अंदर छोटे छोटे माइक्रोकॉज्म्स हैं। ये बड़ा यूनिवर्स मैक्रोकॉज्म, इसके अंदर छोटे छोटे माइक्रोकॉज्म, छोटे छोटे यूनिवर्स हैं जो कि रिकैपिटुलेट करते हैं, एक छोटा छोटा रिकैपिटुलेशन, एक छोटी छोटी समरी बनाते हैं, और ये मिलके एक बड़ा यूनिवर्स बनाते हैं जिसको बोला जाता है मैक्रोकॉज्म। ये एक एंशिएंट बिलीफ था, ये एक एंशिएंट बिलीफ था। तो वो बोल रहा है ये बिलीफ जो आया है, ये जो बिलीफ आया है ये बेसिकली आया है इस पर्टिकुलर एंशिएंट बिलीफ से। दैट इज द फर्स्ट थिंग। मैं अंडरलाइन करूंगा इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों को समझाने के लिए, दैट इफ यू आर गोइंग और इफ यू आर अप्रोचिंग द पैसेज, व्हाट शुड बी योर अप्रोच टू गो थ्रू द पैसेज, ठीक है। 10 वो बोल रहा है मैन वॉज सीन एज अ माइक्रोकॉज्म ऑफ द अर्थ। अर्थ एक अगेन माइक्रोकॉज्म है, उसका माइक्रोकॉज्म है मैन। सो मैन, अर्थ, यूनिवर्स। सो मैन एक अगेन माइक्रोकॉज्म है, उसकी वेन्स, उसकी आर्टरीज जो हैं वो कॉरस्पॉन्ड करती हैं स्ट्रीम, रिवर्स एंड सो ऑन। सो ये सारी चीजें जो हैं ये छोटे छोटे माइक्रोकॉज्म से बनी हुई है। अब वो बोल रहा है ये एक बिलीफ था, इसके बेस पे ये बिलीफ आई, और ये बिलीफ वो बोल रहा है कि आगे आगे अंडरगो मैनी ट्रांसफॉर्मेशंस, काफी ट्रांसफॉर्मेशन होते चले गए, बट इट वॉज स्टिल पोटेंट। ये बिलीफ पोटेंट है, बिलीफ अभी भी रेलिवेंट है, ट्रांसफॉर्मेशन होते चले गए, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर, ठीक है। अब पहला ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं। तो ये किसने बोला? ये लेबिनिज अंकल थे। लेबिनिज अंकल थे, इन्होंने क्या बोला? ऑल द डिफरेंट क्लासेस ऑफ बीइंग, जो चीजें एग्जिस्ट करती हैं, विच टेकन टुगेदर मेक अप द यूनिवर्स, आर द आइडियाज ऑफ द गॉड। वो बोल रहा है छोटे छोटे माइक्रोकॉज्म जो एग्जिस्ट करते हैं, दे आर बेसिकली द आइडियाज ऑफ गॉड, जिन्हें
एक पर्टिकुलर काम करने के लिए धरती पे भेजा गया है, who distinctly knows their essential graduations, right? Only so many ordinates of a single curve so closely united that it would be impossible to place others between these two of them, since that would imply disorder and imperfection. So पहला ट्रांसफॉर्मेशन इसका आ रहा है मेंटल पैटर्न्स का, कि ये सारी चीजें दे आर क्लोजली रिलेटेड, और ये इतनी क्लोजली रिलेटेड है कि इसके अंदर अगर आप कुछ और चीज डालेंगे तो वो इरेगुलरिटी आ जाएगी, chaos डेवलप हो जाएगा. दैट इज द फर्स्ट थ्योरी प्रपोज्ड और द फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन प्रपोज्ड ऑफ दिस. आगे चलते हैं. आगे वो बोल रहा है अकॉर्डिंगली द वेरियस ऑर्डर ऑफ बीइंग एनिमेट एंड एनिमेट. वो बोल रहा है जो बीइंग का मतलब एग्जिस्ट होना, चाहे वो लिविंग है चाहे वो नॉन लिविंग है, एनिमेट या इन एनिमेट, ये इतना अप्रोक्सीमेटली है ईच अदर, एक दूसरे के साथ इतने अप्रोक्सीमेट हैं कि ये बनाते हैं क्या, एक चेन ऑफ बीइंग. ये एक एग्जिस्टेंस की चेन बनाते हैं, और ये इम्पॉसिबल है फाइंड आउट करना कि चेन खत्म कहां हो रही है और चेन शुरू कहां हो रही है. ठीक है, दैट्स व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट. आगे चलते हैं और वो बोल रहा है, आगे इसको देखेंगे, देयरफॉर द स्पिरिचुअल और द साइकिक, हम दो चीजों में बात करते हैं, रिलेटेड टू माइंड, रिलेटेड टू हार्ट. द स्पिरिचुअल एंड द साइक, वो बोल रहा है, आर कनेक्टेड विद द इनएनिमेट. हमारा स्पिरिचुअल, हमारा माइंड, ये इनएनिमेट, ये नॉन लिविंग बीइंग से किस तरीके से कनेक्ट करता है, ग्रेडेशन. ग्रेडेशन का मतलब क्या होता है, द चेन ऑफ इवेंट्स ऑफ द शेयर्ड एट्रीब्यूट्स, क्योंकि हम लिविंग और नॉन लिविंग के साथ एट्रीब्यूट कनेक्ट करते हैं. ठीक है, लेबनिज अंकल आगे क्या बोल रहे हैं. सो लेबनिज अंकल ही चल रहे हैं अभी तक. लेबनिज अंकल क्या बोल रहे हैं, द इंप्लीकेशन वाज दैट समवन विद एनफ इनसाइट, और इसका इंप्लीकेशन क्या हो रहा है, किसी को एक अच्छा खासा इंसाइट हो, जो देख पा सकता हो, वो फ्यूचर को आराम से देख सकता है प्रेजेंट के अंदर एज अ मिरर, कि ये क्या चीजें होने वाली हैं और क्या नहीं होने वाली. ये पहला वर्जन आ गया है इसका. सो लेबनीज अंकल ने कहां से कहां तक बोला था, मैं अंडरलाइन कर देता हूं, बिकॉज देयर विल बी क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस, इसलिए मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूं. लेबनीज अंकल यहां पर आके खत्म हो गए. ठीक है, लेबनीज अंकल यहां आके खत्म हो गए. अब दूसरे अंकल पे जाते हैं हम. दूसरे अंकल क्या बोल रहे हैं, लेट्स सी. अनदर वर्जन ऑफ द आइडिया दैट फ्यूचर लाइज हिडन इन द प्रेजेंट. अब ये दिया था एड्रिन डॉब्स ने. एड्रिन डॉब्स ने क्या बोला, वो ये बोलते थे, एज इवेंट अनफोल्ड ही प्रपोज, जैसे जैसे इवेंट अनफोल्ड होते हैं, they actualize a relatively small number of the possibilities for change that exist at a some atomic level. वो बोल रहा है ये जैसे ही इवेंट अनफोल्ड होते हैं छोटे छोटे, ये पॉसिबिलिटीज देते हैं चेंज का सब एटॉमिक लेवल पे. देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज. जैसे ही इवेंट अनफोल्ड हो रहे हैं वैसे वैसे चेंज आता रहेगा, और उस चेंज से आप फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं. कैसे, देखते हैं. इन दिस प्रोसेस उसने क्या बोला, डिस्टर्बेंस आर कॉज्ड दैट क्रिएट अनदर डायमेंशन ऑफ टाइम. वो बोल रहा है अगर सब एटॉमिक लेवल पे, अगर मान लो सब एटॉमिक मतलब यहां पर माइक्रोकॉस्म का एग्जांपल दे रहा है, अगर उसे सब एटॉमिक लेवल पे कोई भी चेंज हुआ तो वो क्या करेगा, वो एक दूसरे डायमेंशन को चेंज करेगा मैक्रो लेवल पे, और ये सब एटॉमिक लेवल पे जो चेंज हो रहा है उसको वो बोल रहा है पिस्ट्रॉनिक वेव फ्रंट. ये उसने नाम दिया था. अब वो क्या बोल रहा है, पिस्ट्रॉनिक वेव फ्रंट, वो बोल रहा है ये फ्रंट जो है ये ब्रेन न्यूरॉन्स को ट्रिगर करेगा. सो कुछ चेंज होगा, वो ब्रेन न्यूरॉन्स को ट्रिगर करेगा, एटलीस्ट इन द सेंसिटिव पर्सन, और अगर ये ब्रेन न्यूरॉन को वहां ट्रिगर करेगा तो वो फ्यूचर को प्रिडिक्ट करेगा. दैट्स व्हाट दे वर टॉकिंग अबाउट. ठीक है, आगे चलते हैं. अब इसका भी मेटाफर दे रहा है. ऊपर उसने एग्जांपल दिया था किसका, जहां उसने कार का एग्जांपल दिया था, गार्डन का एग्जांपल दिया था, यहां पर वो एग्जांपल दे रहा है किसका, आगे देखते हैं, टॉय शिप का. वो बोल रहा है एक पॉन्ड को इमेजिन करो, वहां बोल रहा है एक साइड में तुमने छोटू सी शिप रखी और दूसरे साइड पे तुमने एक बंदे को रख दिया. ठीक है, अब वो बोल रहा है बंदा उस शिप, टॉय शिप को नहीं देख पाएगा, ही इज अनेबल टू सी द शिप. बट वो बोल रहा है जैसे ही शिप ट्रेवल करेगा वो वेव्स जनरेट करेगा, जिसको वो सिट्रॉनिक वेव्स बोल रहा है. वो वेव्स जनरेट करेगा. वो वेव्स कैसे जनरेट करेगा, जब वो जाएगा पेड़ों पे, पत्तों पे, लकड़ी पे, ये जब पॉन्ड्स के अंदर होंगे सरफेस पे, इनसे जब वो टकराएगा इससे वेव जनरेट करेगा, इससे डिस्टरबेंस जनरेट करेगा, और जब ये वेव डिस्टरबेंस जनरेट करेगा
तो वहां जो बंदा है वो आराम से प्रिडिक्ट कर पाएगा कि कितनी देर के अंदर शिप जो है वो मेरे पास पहुंच जाएगी, और प्लस वो अपने एक्सपीरियंस पे शिप की इमेज भी बना पाएगा बेस्ड ऑन जो वेव जनरेट हो रही है। अगर वेव्स छोटी छोटी जनरेट हो रही हैं, वेरी श्योर शिप छोटा है, राइट, वेरी श्योर वेव्स छोटी भी हैं, टाइम भी ले रही हैं, विच मींस शिप और भी छोटा है, ऑन द बेसिस ऑफ विच बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस समवन इज प्रेडिक्टिंग द फ्यूचर, और उसको वो बोल रहा है सिस्ट्रॉनिक वेव्स। ठीक है, अब वो यहां पर बोल रहा है इस मेटाफर के अंदर ये जो टॉय शिप है ये हम बोल रहे हैं अनफोल्डिंग द टाइम, वहां जो पहुंचेगा, और पॉन्ड जो है वो पाथ ले रहा है, डायमेंशन ले रहा है, और पॉन्ड जो है वो खुद एक सिस्ट्रॉनिक वेवफ्रंट है। अब यहां पर एक चीज वो बोल रहा है कि ये जितनी भी चीजें वो बोल रहा है ये प्योरली हाइपोथेटिकल है और अभी तक ऐसी वेव्स डिस्कवर नहीं की गई हैं। Difficulty is in suggesting a neural mechanism by which the observer distinguish the wave front of a particular event from a maelstrom provided by a unfolding event. So बोल रहा है पहली प्रॉब्लम क्या है कि वेव फ्रंट डिस्कवर नहीं हुई है, दूसरा इतनी चीजें आएंगी, क्या पाथ लेगा, वेव्स बहुत आएंगी, तो वो शिप कौन सा पाथ लेगा, वो न्यूरॉन्स कैसे पकड़ेगा। सो इट इज अ वेरी हाइपोथेटिकल दिस थिंग। सो वो अगेन बोल रहा है द फार्दर अवे द इवेंट, जितना इवेंट दूर होगा उतना ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होगी। क्यों? क्योंकि उतनी वेव फ्रंट जनरेट होगी। यहां तो हमने सिर्फ एक स्मॉल पॉन्ड लिया था। और लास्ट में कंक्लूड कर रहा है सच इन जनरल आर द सम ऑफ द थ्योरीज दैट रिगार्ड द फ्यूचर एज बीइंग इन सम वे अ पोटेंशियली इम्प्लिसिटली एक्सेसिबल इन द प्रेजेंट। वो इसलिए बोल रहा है दैट फ्यूचर इन सम वे इज एक्सेसिबल एट द प्रेजेंट, तो उसको प्रिडिक्ट किया जा सकता है। और साथ में ये भी बोल रहा है ये डिफिकल्टी और लिमिटेशंस भी हैं अटेंडिंग देम, कि उनकी क्या क्या डिफिकल्टी है और उनके क्या क्या इंप्लीकेशंस है। सो दिस इज व्हाट द फिलॉसफी ऑफ थिंग दे आर टॉकिंग अबाउट, दैट व्हाटएवर इज हैपनिंग इन फ्यूचर दैट हैज सम कनेक्शन विद द प्रेजेंट, दैट्स व्हाट द मेन आइडिया, एंड दे आर मेकिंग इट वेरी डिफिकल्ट। बट बिलीव मी, इफ यू हैव रेड दिस पैसेज प्रॉपर्ली, अगर आपने अच्छी तरीके से इस पैसेज को समझा है, आई एम टेलिंग यू क्वेश्चंस विल बी वेरी वेरी इजी। सो लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 1, 4 ऑप्शंस ऑन योर स्क्रीन, लेट्स स्टार्ट। Okay, let's start. The given passage mention each of the following except. एक चीज जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, मेंशन नहीं कर रहा है, बाकी सब कुछ मेंशन कर रहा है। अगेन दिस इज अ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। गलत होना एक दंडनीय अपराध है। देखो पैसेज अगर कहीं पर भी मॉडरेट या डिफिकल्ट का होगा कैटेगरी का, वहां पर क्वेश्चंस आपको इजी मिलेंगे। दैट्स व्हाट माय एक्सपीरियंस ऑफ द लास्ट 8 to 9 years इज टॉकिंग अबाउट। द मोर डिफिकल्ट द पैसेजेस, यू विल फाइंड द क्वेश्चंस समवेयर लिटिल फैक्ट बेस्ड एंड वुड बी इजी टू कॉम्प्रिहेंड। दैट्स व्हाट आई बिलीव। लेट्स सी, not always though. Extraordinary skills of perception may be required in order to have premonitions. That's what they are talking about, the extraordinary skills when they were talking about premonitions की बात हुई थी फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर। अगेन मैं हमेशा बोलता हूं, I always say this that you need to retain। अगर आपने मेरे वीडियोस वगैरह सुने होंगे, मैं हमेशा बोलता हूं आपको रिटेन करनी पड़ेगी इंफॉर्मेशन। यहां पर एक्स्ट्रा प्रीमॉनिशंस की बात करी गई थी ऊपर, जहां पर उन्होंने बात किया था कार जो है अगर उसके अंदर एक वियर्ड नॉइज आ रही है तो उसको किस तरीके से आप प्रेडिक्ट कर पाएंगे। दैट्स वेयर द प्रीमॉनिशन इज टॉकिंग अबाउट। और वहां पर उसने बोला था एक कॉन्शियस आई जो कि स्कैर्सली ऑब्जर्व करती है, तो वहां पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स चाहिए होगी। सो ऑथर ने ये मेंशन किया है। सो ए ऑप्शन विच इज समथिंग विच इज मेंशन क्लियरली। ठीक है, सो इट इज गिवन। लेट्स गो टू ऑप्शन नंबर बी, द फ्यूचर डज नॉट येट एग्जिस्ट। वो बोल रहा है फ्यूचर अभी तक एग्जिस्ट नहीं करता। दैट्स व्हाट गिवन इन द फर्स्ट पैसेज, that's what given in the first passage for sure। so ये भी दिया हुआ था। tremendous insight may be required in order to have premonitions। again इंसाइट्स की बात हुई थी लास्ट पैराग्राफ के अंदर कि अगर किसी बंदे को थोड़ी सी भी इंसाइट है तो वो पहचान लेगा कि क्या होने वाला है। अगेन दिस लाइन वाज गिवन। अगर आपको चाहिए तो आप रेफर कर लीजिएगा पैसेज को, आप स्क्रीनशॉट लीजिए जब आपको मैं पैसेज पढ़ने का टाइम देता हूं, और जब मैं आपको ये वीडियो में क्वेश्चन समझा रहा हूं उसको रेफर कीजिए। आई एम टेलिंग यू विल गेट द लॉजिक। सो अगेन दिस वाज गिवन एंड द लास्ट दे हैव मेंशन्ड इज Pistronic fronts are extremely elusive and stay hidden। By the way, अगर आपको ऑप्शंस एलिमिनेशन आपने मेरे वीडियो लेक्चर्स के अंदर पढ़े होंगे या आपने मेरे लाइव लेक्चर्स मेरे साथ आप अटेंड कर रहे हैं, मैं हमेशा बोलता हूं जस्ट लुक फॉर दोस क्लूज, जस्ट लुक फॉर द वर्ड्स व्हिच आर नॉट मेंशन्ड इन द पैराग्राफ। सो कहीं पर भी छुपने छुपाने की बात, लुका छुपी की बात नहीं हुई थी। स्टे हिडन वॉज समथिंग विच इज एन एलियन ऑप्शन, कहीं पर भी इसके बारे में बात नहीं हुई थी। मैं बिना सोचे समझे डी ऑप्शन को मार्क करके आ जाऊंगा। डी ऑप्शन इज माय राइट आंसर। सर आपने तो सबमिट
टिक कर दिया। ये सब चीजें दी हुई हैं, इसलिए ABC मेरे आंसर नहीं होंगे, इसलिए ABC मेरा आंसर नहीं होंगे। मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। I request everyone that right after this video, आप वीडियो सुनने के बाद प्लीज कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट डालिए कि is this thing making sense for you guys, is this thing is logical for you guys or not. Let's move to question number 2. Question number 2 क्या बोल रहा है? In the toy ship example, author is least likely to agree with which of the following. Author 3 चीजों से एग्री कर देगा, एक से एग्री नहीं करेगा। कौन सा? देखते हैं। It is not possible for several events to unfold simultaneously. मेरा आंसर वो बोल रहा है इट इज नॉट पॉसिबल फॉर सेवरल इवेंट्स टू अनफोल्ड साइमल्टेनियसली। ऑथर ने बोला है इट इज पॉसिबल। देख लेते हैं। सर आप बताओ कैसे? आप तो बोल बाल के चले जाओगे। हियर वी गो। उसने क्या बोला था? लास्ट पैराग्राफ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हियर वी गो। सो प्रोड्यूस्ड बाय साइमल्टेनियसली अनफोल्डिंग इवेंट्स, which is produced by simultaneously unfolding events, and this is something first option के अंदर मेरा आंसर आ गया है। this is what my answer is, but इसका मतलब ये नहीं कि मैं बाकी चीजें नहीं कराऊंगा। मैं B C D ऑप्शन के अंदर भी बात करूंगा। B, seemingly intangible wave front can be converted to tangible predictions. obviously tangible predictions, जहां उसने टॉय शिप की बात करी थी, वो टॉय शिप पहुंचना is a tangible prediction, कि वो पहुंच रहा है। something which you can see, something which you can measure. C, the toy ship could have followed different path in the pond. दिया हुआ है कि ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है कि वो कौन सा पाथ फॉलो करेगा, इसीलिए तो वो थ्योरी हाइपोथेटिकल थी। An analogy to Dobbs wavefront can be drawn. Obviously it can be drawn, तभी तो टॉय शिप की एनालॉजी दी है। अगर ड्रॉ कर ही नहीं पाते तो बात होती कैसे? तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अगेन मुझे राइट आंसर नहीं चाहिए आप लोगों से इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। आप इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मेरा लॉजिक समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप मेरा लॉजिक समझ पाएंगे तो मेरा काम यहां पर पर्पस पूरा हो जाएगा ये वीडियो रिकॉर्ड करने का। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 3। Which of the following is not correct? Again a fact based question. अच्छा, the beauty of this question was, आपको सिर्फ 5 लाइनें पढ़नी है। The beauty of this question is कि आपको सिर्फ 5 लाइनें पढ़नी है, बिकॉज सारे ऑप्शन लेबनीज अंकल के रिलेशन में थे। राइट, दैट्स व्हाट द ब्यूटी ऑफ दिस क्वेश्चन इज। आपको समझना पड़ेगा, पेपर सेटर को पता है कि आप लोग कितना कंफ्यूज आ जाते हो, आप लोग क्यों अच्छे मैनेजर नहीं हो। अगर आप अच्छे मैनेजर होते तो इन 3 चीजों को देख के आंसर निकालते। राइट, हालांकि मैं हमेशा बोलता हूं नन ऑफ द अबव जहां हो वो आंसर, वो क्वेश्चन को थोड़ा सोच समझ के सॉल्व करना चाहिए, बट यहां पर दूसरा क्लू छुपा हुआ था कि सेकंड और थर्ड ऑप्शन एग्जैक्टली अपोजिट थे। एग्जैक्टली अपोजिट थे तो आंसर तो होगा वो श्योर था। समझ लो मेरी बात, कहां से क्लूज आएगा कि सेकंड और थर्ड ऑप्शन में से आंसर तो होगा, वो बहुत श्योर सी बात है। लेट्स सी वो क्या बोल रहा है। सो देखते हैं हम आगे क्या बात कर रहे हैं। सो लेबनीज थ्योरी डिड नॉट परमिट द एडिशन ऑफ न्यू बीइंग्स ऑन द चेन लिंक। यस, बिल्कुल सही है। उसने बोला था अगर आप कोई भी चीज लेके आ जाएंगे तो वो इरेगुलरिटी को दे देगा बढ़ावा। तो ये मेरा आंसर नहीं हो सकता बिकॉज इट इज गिवन इन द पैसेज, सो इट इज करेक्ट। सेकंड, लेबनीज वाज कन्विंस्ड that animate beings, living beings share common attribute only with animate ones. वो बोल रहा है, वो कन्विंस था कि ये जो एनिमेट बींग्स होते हैं, लिविंग बींग्स होते हैं, वो लिविंग वंस के साथ ही रिलेट करते हैं। दैट्स व्हाट दिस ऑप्शन वाज टॉकिंग अबाउट। थर्ड, एनिमेट बींग्स जो हैं एज पर द लेबनीज दे शेयर एट्रीब्यूट्स विद इनएनिमेट वंस आल्सो। सो इन दोनों के अंदर हमारे पास कंफ्यूजन था। चलते हैं एट्रीब्यूट्स के ऊपर ताकि कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। हियर वी गो, इट इज गिवन। सो ये देखिए यहां पर ये दिया हुआ था क्या, इन दिस कंसेप्ट इन द चेन ऑफ बीइंग देन द एनिमेट एंड देयरफॉर द स्पिरिचुअल और साइकी आर कनेक्टेड विद इनएनिमेट ऑफ शेयर्ड एट्रीब्यूट्स। तो आंसर मेरा क्या होगा? आंसर मेरा होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन मेरा होगा ऑप्शन नंबर सी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस, सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, और इसलिए यहां पर मैं सी ऑप्शन को मार्क करके आगे बढ़ूंगा। और लेट्स मूव टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो। द वर्ड अनकैनी इज रेफर टू व्हाट? हमने अनकैनी की बात कहां करी थी सर? वो एकदम जो कॉन्शियस आई से पहचान ले चीजों को, उसके बारे में बात करी थी। राइट, चलो देखते हैं। द इन्यूमरेबल माइक्रोजम्स each recapitulating the feature and order of a large whole. Now
कई बार ऐसा होता है जब ये वीडियो वगैरह, जब ये हम लोग कैट का पैसेज वगैरह सॉल्व करते हैं, कोई भी लाइन हमें पैसेज से दिख जाती है, हम लोग नाचने लग जाते हैं, भगड़ा लगाने लग जाते हैं, चलो हमारा आंसर आ गया, और आंसर होता है गलत। क्यों? अंडरस्टैंड, यहां पर अनकैनी की बात हुई है, और ये जो आप बात कर रहे हैं माइक्रोकॉस्म्स की, इसकी बात ही नहीं हुई थी अनकैनी तक। सर क्या बात कर रहे हो? यस, इसकी बात ही नहीं हुई थी अनकैनी तक। देखिए आप इस तरीके से, ये देखिए, अब यहां पर बात हुई है इनन्यूमरेबल माइक्रोकॉस्म्स की, अनकैनी की बात यहां हुई है, तो अभी तक तो भैया बात ही नहीं हुई थी। सो इसीलिए मेरा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो एलिमिनेट हो गया है, मेरा फर्स्ट ऑप्शन एलिमिनेट हो गया है। ऑप्शन नंबर बी, द एबिलिटी टू एनालाइज सिम्टम्स एंड इंडिकेशंस दैट आर नॉट विजिबल टू ऑर्डिनरी आई, ये मेरा आंसर हो सकता है कि वो एबिलिटी थी जब मैं इंडिकेशन तो सिम्टम देख पा रहा हूं, जो कार ब्रेक होने की बात थी वहां पर उसकी अनकैनी एबिलिटी थी, ये मेरा आंसर हो सकता है। लेट्स गो टू ऑप्शन नंबर सी, डॉब्स वर्जन। डॉब्स की बात अभी तक नहीं आई थी, बिकॉज अभी तो हम ऊपर ही चल रहे हैं, अभी तो हम ऊपर ही चल रहे थे, अनकैनी वाली बात पे डॉब्स की बात नहीं आई थी। और डी क्या बोल रहा है? प्रीमोनिशंस दैट ओरिजिनेट फ्रॉम हिंट्स एंड क्लूज दैट आर हार्डली नोटिस्ड एट अ कॉन्शियस लेवल। हार्डली नोटिस्ड इज टू एक्सट्रीम, दे आर स्केर्सली, राइट? ये स्केर्सली की बात मतलब कभी कभार, हार्डली का मतलब आप एक्सट्रीम में चले गए हो, इसलिए मेरा डी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, एंड आई विल गो विद ऑप्शन नंबर बी एज एन आंसर, राइट? सो दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। आप मेरे वीडियोस वगैरह देख सकते हैं यूट्यूब पे ऑन ई कोचिंग एप्लीकेशन एज वेल, एंड माय सजेशन इज हियर वी गो, द लिंक इज देयर ऑफ द टेलीग्राम ग्रुप। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, ऐसे सारे वीडियोस जो हैं रिलेटेड टू वोकैबुलरी, फैंटास्टिक 5, सुडोकू सॉल्विंग, एवरीथिंग इज देयर। सो डू शेयर विद दिस share this telegram QR code with your friends as well, relatives as well, those who can be benefited out of this particular session. With this, I am coming to the end of this particular video on Fantastic 5. Thank you, stay tuned and keep watching eCoaching.